دوستو یہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب جلیلی مدنی حفظہ اللہ جو سدھارتھ نگر یو پی کے ہیں اور آپ کے سامنے پرمغز تقریر کتاب سنت کی روشنی میں آپ کو سنا رہی تھی۔ پہلا سوال ہے شیخ، عورتوں کی طرف سے کہ غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کا عقیقہ نہیں دے سکے مگر فی الحال خوب پیسہ کوڑی ہے تو کیا عقیقہ دے سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات، عقیقہ دینا یہ عورت کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بچے کا یہ حق ادا کرے۔ اگر باپ بچے کے لیے عقیقہ نہیں کرتا ہے، اس میں بے ایمانی کرتا ہے یا ہیلے بہانے کرتا ہے تو اسی کا نقصان ہوگا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کی دن وہ بچے اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش نہیں کریں گے جو بچے اپنے ماں باپ کی طرف سے اس حق سے محروم ہیں، یعنی ان کے باپ نے جان بوجھ کر یا سستی لاپرواہی یا بہانے کر کے ان کا عقیقہ نہیں کیا ہے۔ عقیقہ کرنا چاہیے سے، اور واقعی اگر کسی شخص نے بہت ہی مجبوری کی حالت میں عقیقہ نہیں کر پایا، نہیں دے پایا، تو جب اس کے پاس ہو جائے، جتنی جلدی ہو جائے وہ عقیقہ کر دے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ جو بچہ انتقال کر گیا ہو عقیقہ نہیں دے پایا تو اس بچے کا عقیقہ دینا ضروری ہے؟ جو بچہ انتقال کر گیا ہے اگر وہ 7 دن سے پہلے انتقال کر گیا تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا عقیقہ دینا چاہیے، بعض نے کہا کہ نہیں دینا چاہیے، اور بعد میں اگر انتقال کر گیا ہے تو یہ وہی اختلاف یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت ملک الموت کیا مل کر عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لے کر گھر تشریف لائے تھے یا نہیں؟ اب ملک الموت کے حوالے سے نہیں بات کنفرم ہے، لیکن اتنی سی بات ہے کہ نبیوں سے یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خبر دی گئی تو آپ نے لبیک کہا، یعنی آپ نے اپنی سہمتی جتائی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کروایا۔ مصلی کے آگے سے کوئی گزر سکتا ہے یا نہیں، سترا ہونے کی صورت میں اور نہ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا؟ جب کوئی شخص نماز پڑھے تو سامنے سترا رکھ لے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ بغیر سترے کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ اس کے سامنے سے جب کوئی انسان گزرتا ہے تو ایک طرح سے اس کی نماز کو کاٹ دیتا ہے۔ سترا رکھ کر پڑھنا چاہیے۔ البتہ کوئی دوسرا شخص جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کسی نمازی کے سامنے سے گزرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ کیا جرم کیا گناہ ہے اس کا تو 40 سال تک اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے گا، لیکن کسی نمازی کے سامنے سے گزرے گا نہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ انتہائی زیادہ ضروری ہے گزرنا، تو ہمارے استاد شیخ سلیمان الروحیلی جو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر وہ فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے اس کے آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو ضرورت کے تحت گزر سکتا ہے، واللہ اعلم۔ 4 رکعت والی نماز میں اگر امام صاحب غلطی سے 3 ہی رکعت پڑھائے ہوں تو بعد میں 1 رکعت پڑھنا ضروری ہے کہ پھر 4 رکعت پورا دہرائے گا؟ 4 رکعت والی نماز میں اگر امام صاحب نے غلطی سے 3 رکعت پڑھائی ہے تو اس طرح کی غلطی خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سرزد ہوئی، اس کو سہو کہا جاتا ہے، اس کے لیے سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ البتہ جو 1 رکعت رہ گئی ہے بعد میں 1 رکعت امام صاحب پڑھائیں گے، مقتدی لوگ پیچھے پڑھیں گے، اور 1 رکعت وہی کمپلیٹ کرنے کے بعد 2 سجدہ کیا جائے گا جس کو سجدے سہو کہتے ہیں۔ امام مقتدی رکوع کی حالت میں ہو تو بعد میں آنے والا شخص کیا کرے؟ بیٹھ جائے یا رکوع کی حالت میں جماعت میں شریک ہو جائے، اور وہ مدرک رکوع رکعت ہوگی کہ نہیں؟ اگر امام رکوع کی حالت میں ہے اور بعد میں کوئی شخص اسی حالت میں شامل ہو رہا ہے تو اسی حالت میں وہ شامل ہو جائے۔ رہی بات یہ کہ اس کی وہ رکعت مانی جائے گی کہ نہیں مانی جائے گی، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن احتیاطی بات یہی ہے کہ وہ رکعت دہرا لے، کیونکہ اس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہی ہماری جماعت کا فتویٰ ہے۔ رکوع کی حالت میں سر اور کمر برابر سیدھی ہونی چاہیے یا نہیں؟ اگر سر اونچا کمر نیچا، ایسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ رکوع کی حالت میں سر اور کمر برابر ہونا چاہیے، اور یہی کوشش کرنی چاہیے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، پوری کوشش کرنی چاہیے۔ نماز کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اگر کسی کا کچھ اوپر نیچے ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے، نماز ہو جائے گی۔ ایک ہی رکعت میں 3 سجدہ غلطی سے کر لیا تو کیا کریں گے؟ ایک ہی رکعت یعنی وتر کی نماز پڑھ رہا ہوگا،
नहीं, वो 3 सजदा कर लिया एक ही रकात में भूल में, 3 बार सजदा कर लिया रकात में। जी जी, तो एक सजदा उसने जायद किया है, उससे गलती हुई है, इसके लिए भी सजदे सहू कर। लिखा तकबीर तहरीमा रफुल यदैन के वक्त दोनों हथेलियों को रुख किधर होना चाहिए, किबला की तरफ या अपने दोनों रुखसार की तरफ? रफ़ा यदैन के वक्त, चाहे तकबीर तहरीमा के वक्त हो या उसके बाद के रफ़ा यदैन में हो, सही तरीका ये कि हथेलियों का रुख किबला की तरफ होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये गड़ासे वाला अंदाज है, इसलिए ये नहीं नमाज में ये है, यानी उसका रुख किबले की तरफ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। लेकिन क़याम की हालत में नज़र कहाँ होनी चाहिए, रुकू की हालत में नज़र कहाँ होनी चाहिए, ये सब सवाल। पूरे नमाज में चाहे क़याम की हालत हो या रुकू की हालत हो, सजदे की जगह पे ही नज़र रखना चाहिए। सलाम फेरते वक्त अपने दोनों कंधों पर नज़र रखना चाहिए कि मुक्तदियों की तरफ? इसकी कोई तहदीद इस्लाम में मुझे नहीं मालूम है कि की गई है कि सलाम करें तो कंधे पे देखें या मुक्तदियों को देखें, बस दाहिने तरफ आपको सलाम फेरना है। तशहुद की हालत में शहादत की उंगली, एक हदीस में है कि हरकत देते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रवायत में है कि हरगिज हरकत ना दे, तो ऐसी सूरत में क्या सही है? तशहुद की हालत में तहियात पढ़ते हुए उंगलियों को बगैर किसी तखसीस के लगातार आपको हरकत देते रहना है। जिस रिवायत में है, ये गालिबन दोनों हदीसें अबू दाऊद की हैं, जिस रिवायत में ये है कि हरकत नहीं देते थे वो रिवायत ज़ईफ़ है, और जिस रिवायत में ये है कि देते थे वो रिवायत सही है। लिहाजा बेहतर यही है कि सुन्नत पे अमल किया जाए, दुआ करते रहें और उंगली को हरकत देते रहें। बगैर टोपी या सर पर कोई कपड़ा रखे बगैर नमाज पढ़े, ये कैसा है? और बगैर टोपी नमाज पढ़ने वाले को बाज़ मौलाना कहते हैं कि जानवर जैसा है, सुअर जैसा है, तो इसको तस्बीह देना ये सही है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बगैर टोपी के अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज की नेकी में एक ज़र्रा कोई कमी नहीं होने वाली है। और जो तशबीह दी गई है, तशबीह इंतहाई गलत है, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि हज हमारे इस्लाम का एक रुकन है, और हज में इंसान जितने दिन रहता है वो टोपी नहीं लगाता है, और गोया कि इस तरह की तशबीह से किसी हाजी को ये गंदे अल्फाज से याद करना हुआ, ये गलत है। टोपी लगा के पढ़ें ना लगा के पढ़ें, इससे नमाज की नेकी पे ज़र्रा बराबर ना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ये आपकी अपनी चॉइस है। और सुन्नत नमाजों में सना यानी अल्लाहुम्मा बाइद बनी पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? सुन्नत हो या फ़र्ज हो, सना अल्लाह मुबाइद या सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये फ़र्ज वैसे भी नहीं है, इसको सुनन दुआओं में रखा गया है, तो पढ़ना चाहिए, यही हमारे नबी का तरीका। कोई शख्स हाजी या मौलाना है, 5 वक्त को खुद नमाज तो पढ़ता है लेकिन अपने बच्चों लड़कों को नमाज का हुक्म नहीं देता है, तो ऐसी सूरत में उनके लड़के का नमाज नहीं पढ़ते हैं, ऐसी सूरत में बाप पर शरई हुक्म क्या नाफिज होगा? बाप के लिए ये कहा जाएगा कि वो एक बड़े गुनाह का मुर्तकिब है, अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहा है। अल्लाह ने कहा कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। और ये मुसलमान जानते हैं कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो एक सवाल होगा कि तुम जहन्नम में क्यों गए, तो जवाब देंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, गोया कि बेनमाजी जहन्नमी होगा। और बाप अपने बच्चों को जहन्नम से नहीं बचा रहा है तो इस आयत की मुखालिफत करते हुए कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा, उसको अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। आज के मॉडर्न दौर में तकरीर करके कोई 10,000 फिक्स करते, कोई 25,000, कोई 90,000, कोई 1 लाख, ये फिक्स करके 1 घंटे की तकरीर में पैसा लेना क्या कुरान हदीस को बेच के खाने के मुतरादिफ नहीं है? कुरान हदीस को बेच कर खाने वाली जो बात कुरान की आयतों में मज़कूर है, सूरह बकरा या दीगर आयात में, वहाँ मुफस्सिरीन के कलाम अगर आप पढ़ेंगे तो माना ये है कि अगर कोई मुकर्रिर, कोई खतीब गलत बात, कुरान और हदीस के मुखालिफ बात पेश करता है और उस पर एवज लेता है, या मुंह देखकर फतवा बयान करता है, गलत फतवा दे रहा है और सामने वाले को खुश करने के लिए वो गलत फतवा जानबूझ के दे रहा है, उसके लिए वो रकम ले रहा, तो ये हुआ कुरान और हदीस को बेचना, चाहे 1 रुपया ले या 1 लाख रुपया ले। लेकिन अगर कोई इंसान सही चीज़ बता रहा है, अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करके बतला रहा है और अपने वक्त क्या वो पैसा चार्ज करता है, तो मैं इसमें कोई हर्ज नहीं समझता हूँ। इस तरह से तरावी पढ़ाते हैं तो हाफिज़ रमज़ान में तरावी पढ़ा करके 20,000, कोई 50,000, कोई 1 लाख लेते हैं और उसके लेने के लिए भीड़ लगा देते हैं। अगर पैसा ना मिले तो तरावी पढ़ाएगा नहीं, वो घूमेगा घर में, तो क्या इस तरह उनका पैसा लेना भी सही है?
तरावी पढ़ाना हो या इमामत कराना हो या तकरीर करना हो, जितने भी दीन के काम हैं, दीनी कामों पे सबसे पहली नसीहत ये होनी चाहिए, उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं, कि अल्लाह ताला को राज़ी करना, अल्लाह ताला को खुश करना, यही हमारा मकसद होना चाहिए। और इसीलिए हमारे असलाफ में से गालिबन इमाम सुफियान सौरी कहा करते थे कि दीन का काम करते वक्त सबसे ज़्यादा मुझे लड़ाई जिससे करनी पड़ती है वो अपने दिल से। जैसे आपके इस इजलास में आना हो, किसी खतीब को आना हो, जाहिर सी बात है आप लोग नजराना उसे देते हैं। अब अगर उसके दिल में नजराने ही की तड़प है और उसी के लिए वो आ रहा है, दिमाग में बार बार वही आ रहा है, तो वाक़ईतन ऐसा खतीब अपने आप को कहीं ना कहीं हलाकत में डालने का जरिया बना रहा है। अपने दिल से लड़ना चाहिए कि हमारे दिल में इखलास हो, अल्लाह ताला को राज़ी करना मकसूद हो, और उसके बाद अगर आपके वक्त के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है, नजराना दिया जा रहा है, तरावी के लिए मेहनताना दिया जा रहा है, इमामत के लिए तनख्वाह दी जा रही है, तो ये भी कोई हर्ज की बात नहीं है और इससे आपके इखलास पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जो हमारे इलाके में रात रात भर जलसा होता है और ये स्टेज में चंदा उठाते हैं, तो बाज़ लोग कहते हैं कि गलत तरीका है, जलसा 10 बजे रात 11 बजे रात तक बंद हो जाना चाहिए और इस तरह माइक पे चंदा उठाने का सिस्टम गलत है। क्या ये सही? रात भर जलसा हो या रात भर बैठ के मोबाइल देखना हो या रात भर बैठ के तकरीर करना हो या रात भर बुखारी पढ़ना हो, अकेले हो या पूरे मजलिस के साथ हो, अगर फजर की नमाज छूट जा रही है तो सब गलत है। फजर की नमाज बुखारी पढ़ने की वजह से छूट जा रही है तो भी गलत है। बुखारी आप इशा के बाद ना पढ़ें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा के बाद गुफ्तगू करना, हलाल गुफ्तगू करना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकवास तो करते नहीं थे, आप शरीयत बयान करते थे, शरीयत की बातें जिक्र करते थे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद गुफ्तगू करना, बातचीत करना पसंद नहीं फरमाते थे। उलमा ने इसकी तवजीह यही बयान की है कि अगर इशा के बाद आपको बात करने की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे मेहमान आ गया तो मेहमान के साथ बात कर सकते हैं, दीन इस्लाम की बात कर सकते हैं, लेकिन सबके साथ यही शर्त है कि किसी की फजर की नमाज नहीं छूटनी चाहिए। अगर नहीं छूटती है तब तो ठीक है, वरना अल्लाह के यहाँ सब लोग जवाब दें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जज़ा। आखिरी सवाल कि जैसे कुछ लोग मस्जिदों में भी सुतरा लगाने को ज़रूरी करार देते हैं, इकामत दे दी गई है लेकिन इमाम साहब मेहराब में सुतरा लगाने की वजह से जमात खड़ी नहीं हो रही है, सुतरा ला के रखा तब जमात खड़ी की, तो इस तरह शिद्दत करना मस्जिदों के अंदर जबकि दीवार बनी है तो उसमें भी सुतरा लगाना ज़रूरी है। अब मस्जिद के अंदर सुतरा दीवार अगर पहले से बनी है तो कोई सुतरा रखने की ज़रूरत नहीं है। इमाम साहब के लिए अगर दीवार सुतरा बन गई है तो इमाम साहब का सुतरा बाकी मुक्तदियों का सुतरा हुआ करता है, उसमें अलग से लकड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स इस सुन्नत को, क्योंकि हमारे समाज में सुन्नत ख़त्म होने के कगार पे है, कोई इसको तालीम की हैसियत से इसको याद दिलाता है तो इसको हम तशद्दुद नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे सुन्नत की एक हिर्स है। अल्लाह ताला इसको सही राह पर रखे। आमीन। वो तो पहले मालूम है, वो कह रहे हैं कि जैसे हदीस है ना, एक हदीस के सब के पीछे तन्हा की नमाज नहीं, तो लोग करते क्या है कि धकेल देते हैं, उसमें से एक तो खींच लेते हैं, उसके बाद 2 आदमी हो जाते हैं, तो क्या वो अकेले भी नमाज पढ़ सकता है? ये बात सही है कि अकेले सब में नहीं खड़ा होना चाहिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और रही बात खींचने की, तो ये इंतहाई ज़्यादा गलत है, क्योंकि अगर आप अकेले पीछे फंस गए हैं और बाकी आगे वाली सब पूरी टाइट है, आपने वहाँ से खींच लिया तो पहली सब में खलल हो गया। और ये भी हदीस है कि पहले पहली सब को पूरी करो, बाद में दूसरी को पूरी करो, तो आपने पहली को भी अधूरा कर दिया और अपने लिए पूरी जमात का नुकसान किया, पहले सफ़ वालों का नुकसान किया। इसलिए सही बात यह है, राजे बात यह है कि अगर पहली सब में ज़र्रा बराबर गुंजाइश नहीं है कि एक आदमी एडजस्ट हो पाए, तो अकेले अगर आपको नमाज पढ़ना पड़े तो पीछे आप अकेले पढ़ सकते हैं, इसमें आप माजूर हैं, कोई हरज की बात नहीं। बैंक वगैरह के इंटरेस्ट यानी सूद वगैरह जो ब्याज का पैसा मिलता है, उसको मदरसा मस्जिद में दान करना कैसा है? नाजायज़। कहाँ करे था? इस सिलसिले में मैंने जो तहकीक की है, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं जो इत्मीनान बख्श मुझे लगता है कि सूद वगैरह की रकम गैर मुस्लिम लोगों में खर्च करना चाहिए। जहां भी समाज में गैर मुस्लिम हो, कमज़ोर हो, परेशान हाल हो, आपके कुर्ब जवार में हो, उनको देना चाहिए, ज़्यादा बेहतर यही है। जी जी, जज़ाकुमुल्लाह खैरन।
वो छोटा सा सवाल छोड़िए, जाए नमाज में चांद तारा रहने से नमाज होगी कि नहीं? जाए नमाज जितना साफ सुथरा रहे उतना ही बेहतर है, ताकि आपको अट्रैक्शन बना रहे अल्लाह ताला की तरफ, आपको मुसल्ले पे तवज्जो न ज़्यादा जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल।